Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a piston moves vertically up and down in a cylinder as illustrated in figure. The piston is connected to a wheel by means of rod that is pivoted at the piston and the wheel. As the piston moves up and down, the wheel is made to rotate. First, we have to state the number of oscillation made by the piston during one complete rotation of the wheel. Second, the wheel makes 2400 revolutions per minute. We need to determine the frequency of oscillation of the piston. So to understand this question, we need to understand about the key concept of equation of SHM. So as a key concept or equation of SHM समझने के लिए we will go for using the concept of projection of UCM as SHM. अगर हम बात करें कोई particle let's say at any instant it is at point P when t equals to 0, so this is making an angle phi with the horizontal. सो हमें पता है कि जब कभी भी एक यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल अगर हम उसे लेट्स से यहाँ पे अगर हम इसकी लाइट मींस इंसिडेंट करें इसके ऊपर पार्टिकल जो घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, सो वी कैन सी के अबाउट दिस डायमीटर दैट इज वर्टिकल डायमीटर वी कैन सी के दिस पार्टिकल का जो शेडो होगा दैट विल परफॉर्म एसएचएम, राइट. अगर हम देख सकते हैं कि इस इंस्टेंट पे इसका जो शेडो होगा वो कुछ इस पॉइंट पे पड़ रहा होगा यहाँ पे, राइट. फर्दर आफ्टर सम टाइम टी लेट्स से पॉइंट पी यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है at t equals to t we are supposing, and this particle is moving in an anti-clockwise direction with a constant angular speed omega. So इसकी जो shadow होगी वो यहाँ कहीं आएगी, right. And in that situation we can see कि ये particle जो है SHM perform करेगा and this will let's say displacement will be y. So ये instant पे let's say it is making an angle theta, and यहाँ पे जो theta होगा theta will be equals to omega into t, that is angular velocity into time. Since we know theta is angular displacement, so angular displacement is nothing but angular velocity into the time. अब यहाँ पे for this uniform circular motion angular velocity को हम angular frequency भी कह सकते हैं, right, but both are different term that we need to be careful. So from here we can see अगर हम इस एंगल की बात करें इस एंगल की, सो ये एंगल जो होगा दिस एंगल विल बी ओमेगा टी प्लस फाई या फिर थीटा प्लस फाई भी लिख सकते हैं हम, ठीक है. सो यहाँ से इस ट्राइंगल से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द साइन ओमेगा टी प्लस फाई. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी अपोजिट यानी y अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस विल बी नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल और वी कैन से द एम्पलीट्यूड. रेडियस ही एम्पलीट्यूड के बराबर होगा यहाँ तक जब पार्टिकल पहुंचेगा, सो इट विल बी कंप्लीटिंग अ रेडियस फ्रॉम दिस ओ पॉइंट, राइट. सो यहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन आ रहा है पार्टिकल का वो आ रहा है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये जो फाई था फाई इज द इनिशियल फेज, राइट. अगर फाई है 0 so that means particle is starting from mean position, and if phi comes out to be pi by 2 so particle is starting from extreme position. So ये एक important point यहाँ पे हमें याद रखना है. And apart from this now we can be able to answer the question. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमें पिस्टन गिवन है, पिस्टन जब ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है वी कैन से, सो इन दैट सिचुएशन ये सर्कल जो है completely we can say it rotates. So in this situation we can see कि हमें बोला जा रहा है कि स्टेट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय द पिस्टन ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द व्हील. अगर हम कंप्लीट रोटेशन ऑफ द व्हील की अगर हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द टी इज कैपिटल टी, टाइम पीरियड के बराबर जब टाइम हो जाएगा, सो जब कितने ऑसिलेशन वी कैन से कंप्लीट करेगा पिस्टन. सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. सो बेसिकली हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है. सो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y इक्वल्स टू ए साइन omega t. If let's suppose we are considering the particle is starting from the mean position, so in that situation this will be the case we are getting, ठीक है. So from this we can see t की जगह हम अगर t क्या है basically it is time period. Time period क्या होता है, time period is the time taken by the body to complete one complete circle. एक complete चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगा, that is what the टाइम पीरियड इज. तो हम चेक कर रहे हैं कि एक कंप्लीट चक्कर लगाने में पिस्टन कितना ऑसिलेट किया, या फिर स्टेट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय द पिस्टन ड्यूरिंग वन रोटेशन. सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे a इंटू साइन ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी इंटू टी. तो यहाँ से टी टी कैंसिल हो गया. सो 2 पाई की वैल्यू आ रही है, साइन 2 पाई इज व्हाट 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 0. सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि हुआ ये है कि पार्टिकल जो है वो मीन पोजिशन से स्टार्ट हुआ
इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ और जब वो वापस इस पोजीशन पे आया, यानी 0 से स्टार्ट हुआ और जब वो 2 पाई पे आ गया, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से इट हैज कंप्लीटेड वन कंप्लीट सर्कल, राइट। सो हमसे पूछा जा रहा था कि स्टेट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय द पिस्टन। अब यहाँ पे पिस्टन क्योंकि इससे कनेक्टेड है, वी कैन सी जब ये यहाँ पे हम देख सकते हैं जब ये पॉइंट पी जब टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा, सो इन दैट सिचुएशन पिस्टन विल रीच इट्स मैक्सिमम पॉइंट, राइट। और फिर अगेन जब ये वापस से घूम करके अपने पॉइंट पी पर आएगा, सो इन दैट सिचुएशन धीरे धीरे से हम समझते हैं, लेट्स से पॉइंट पी से वो गया पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। सो पॉइंट ए पे जब गया मतलब वो यहाँ पहुंच गया अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ मिल गई उसे, ठीक। अब अगेन वो नीचे आएगा, फिर वो यहाँ तक पहुंचेगा, अगेन ये मीन पोजीशन पे आ गया, मीन्स दैट मीन्स ये अगेन वापस इस पॉइंट पे आ चुका है अब घूम करके, ठीक है। फिर अगेन वो नीचे की तरफ जाएगा, सो दिस विल बी द नेक्स्ट एक्सट्रीम इट विल रीच, ठीक है। सो ये अगेन एक एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी, ये इसकी मीन पोजीशन थी। सो अगेन अब ये वापस जाएगा, जब ये यहाँ तक आ गया तो ये नेक्स्ट एक्सट्रीम पे आ चुका है ये वाले पे। अब अगेन ये वापस जब मीन पे पहुंचेगा, सो इट हैज कंप्लीटेड वन सर्कल। जब भी हमने यहाँ पे लिखा है 0 से 2 पाई, 0 से स्टार्ट हुआ, एक कंप्लीट सर्कल किया 2 पाई, यानी कि पिस्टन ने एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लिया, ठीक है। सो वी कैन से देयरफॉर piston completed one oscillation, piston completed one oscillation। जब सर्कल ने एक कंप्लीट चक्कर मारा तो पिस्टन ने एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लिया, ठीक। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में हमसे बोला जा रहा है वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द व्हील मेक्स 2400 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। So we need to find the wheel makes 2400 revolutions per minute, determine frequency of oscillation। So frequency basically क्या होता है, number of repetitions। और हमें पता है एक कंप्लीट चक्कर जब पार्टिकल लगाता है तो एक ऑसिलेशन पिस्टन कंप्लीट कर लेता है, राइट। सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से n हमें गिवन है 2400 rpm। सो इसको मिनट्स में हमें गिवन है, अगर हम सेकेंड्स में निकालें सो 2400 डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 40 हर्ट्स। सो यानी कि द पिस्टन विल कंप्लीट 40 oscillations। I hope you understood the solution. All the best.